Population composition. Population composition, if you look at this chapter, population composition, it is saying how can population of an area be understood. When we talk about population composition, the main thing is how can the area be understood. One thing that we should see is the age. Age, if you see, on the basis of age, people can be divided. Then, on the basis of sex, they can be divided into male and female, and also in terms of their place of residence. So, there are three criterias which are usually used to understand population composition: age, sex, and place of residence. Now comes the word sex composition. The ratio between the number of women and men in population is called as sex ratio. So one thing that we understand is what is sex ratio? The ratio between men and women. Now it says male population over female population in 2000. The number of males per thousand females. Now please try to understand कि क्या क्राइटेरिया है, इसको समझना बहुत ही आसान है. एंड here I am trying to tell you the criteria, and the criteria is this: whichever is lesser is put above. In the world, usually male population is less and female population is more. Because male population is less, female population is more, we put male population above and female population below. अब इंडिया में क्या है कि फीमेल्स कम है और मेल ज्यादा है. तो इंडियन कंडीशन में, इन इंडिया, द सेक्स रेशियो वुड वर्क आउट यूजिंग द फॉर्मूला फीमेल पॉपुलेशन ओवर मेल पॉपुलेशन. मतलब फीमेल जो है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कम है. मैंने बोला था जो कम है दे आर टू बी पुट अबव and those who are more have to be put below. And then again, something that we saw in the birth rate, and that was the concept of 1000. That 1000 was meant to make it comparable. We realize that 1000 is meant to make things comparable. So male over female into 1000, female over male into 1000. Now one more thing that you need to understand is the fact that this sex ratio that we are seeing, both these points have to be written if a question comes. Explain how is sex ratio calculated in different parts of the world. You can't write only one point of India, you'll have to write about India as well as world. If you write only one particular pattern of India or world, then half marks will be given, because this is what happened in the boards. So I'm telling you how a question is asked in the board paper. Now a question comes, okay, what are the reasons why female are less in different parts of the world or some parts of the world? It says where gender discrimination is rampant. मतलब मेल और फीमेल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल के साथ इनजस्टिस हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर जो सेक्स रेशियो होगा वुड बी अनफेवरेबल टू वुमेन. अब क्या क्या तरीके हैं फीमेल के साथ कि उसके साथ उसका सेक्स रेशियो कम हो जाए. एक है फीमेल फीटिसाइड. फीमेल फीटिसाइड मीन्स दैट द चाइल्ड इज बीइंग किल्ड right in her mother's womb even before the child is born, because at that moment the child is a fetus. अगर एक बच्चा पैदा हो गया
If a child has been born, then he becomes infant. 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। और अगर वो पहले साल के अंदर मर गया तो उसको कहेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड। एंड third main reason because of which the number of females may be less is domestic violence against the woman. Even in childbearing, if you see, a large number of women die. So, if the facilities available are good, if the hospitals are there, medicines are there, everything is perfect, then a large number of women may not die during childbirth. In India now, this has improved to a great extent, but in the past, there was a time when a large number of women used to die during childbirth. In the next topic, you will see, okay, females have a biological advantage over male because जो छोटे फीमेल होते हैं बच्चे 5 साल तक दे आर मच मोर स्ट्रोंगर देन द बॉयज दैट इज देयर biological advantage and they are much more stronger, and not only are they stronger, they can survive better. On the other hand, male child is weaker always in the first 5 years. So we can easily say that the womb is biased towards the girl child and it is much more stronger. But that female natural advantage is cancelled by the social disadvantage. Here in this page, you will see world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 females. तो मतलब वर्ल्ड में 2 आदमी ज्यादा हैं पर 100 फीमेल्स पे, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन लाटविया वेयर इट इज 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। तो मतलब मेल सिर्फ 85 हैं और फीमेल्स 100 हैं। मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि उनको एक नेचुरल एडवांटेज होती है फीमेल चाइल्ड को कि वो स्ट्रोंगर होता है। तो जो बर्थ रेट नेचुरली देखा जाए तो फीमेल का बर्थ रेट ज्यादा होता है। लाटविया में आप देखिए सिर्फ 85 मेल्स हैं पर 1000 फीमेल्स। इन कॉन्ट्रास्ट कतार देर आर 301 males per 100 females. That's very very negative. अब ये इनजस्टिस टू गर्ल चाइल्ड है और स्टिग्मा है और प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड है जो इतना अंतर कर दिया कि कतार में 311 मेल्स हैं और ओनली 100 फीमेल्स। Further, it says the world pattern of sex ratio does not exhibit variation in developed regions of the world. The sex ratio is favorable for females in 139 countries. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल है एंड अनफेवरेबल इन 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या आप कल्चर जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम कल्चर को मिनिमाइज करते हैं मगर कल्चर जो है जो स्टेटस वुमेन को देता है उसके मारे उसकी जो डेथ रेट है ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखो कौन सी कंट्रीज में सेक्स रेशियो जो है अनफेवरेबल फॉर वुमेन है तो यू कैन सी चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव लोअर सेक्स रेशियो। Other extreme is greater part of Europe where males are in minority. अब why are males in minority in European countries? वो कह रहा है a deficit of male population of many European countries is attributed to।
तो एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, अभी तक 2 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड कहाँ पर है। अगर ये क्वेश्चन आता है वेयर इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड रिकॉर्डेड, तो आपका आंसर आएगा लाटविया में, है ना। एंड लोएस्ट कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है इन कॉन्ट्रास्ट, तो आएगा कतार में। 2 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा कि व्हाई इज देयर लेस नंबर ऑफ मेल्स इन यूरोपियन कंट्रीज। तो इसका रीजन क्या है? बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन। एक रीजन है कि जो वुमेन का स्टेटस है वो बेटर है। क्या है? बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन है। एंड मेल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में चले जाते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की जो फीमेल हैं they will also feel it insecure to come to countries like India, Bangladesh, where security of women is less. So what happens is male population usually migrate, and because of better status of women they can easily live in their own country, and males migrate out of their country to different parts of the world. So now age structure, अब एज स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या कर रहा है, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। अब एज ग्रुप्स क्या हैं, आप इसको देखिए, वो कह रहा है यहां से लेके ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसको पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। इसमें देखिए कि 0 से लेके 15 तक के जो लोग हैं उन लोगों को हम कहते हैं चिल्ड्रन। सो इफ यू आर 15 यू आर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टडीज टिल 15, बिकॉज चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे सारी नीड्स के लिए, तो उन्हें चिल्ड्रन माना जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में 15 के बाद 15 टू 59 तक आप सोचो लोग नौकरी करने लगते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता कि 15 ईयर्स का बच्चा जो है वो नौकरी करने लगता है, मगर वहां पर लोग उसको मैच्योर मानने लगते हैं, और 15 के बाद उसे मैच्योर में माना जाता है, या उस वर्ड को कहा जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। क्या कहा जाता है? वर्किंग पॉपुलेशन। तो हमारे पास एक हो गया चिल्ड्रन, एक हो गया वर्किंग पॉपुलेशन, और फिर हमारे पास हो गया एजिंग पॉपुलेशन। अब हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हो गए पॉपुलेशन के। एक तो चिल्ड्रन जो 15 से लेस थे, मतलब 14 तक थे। 15 टू 59 हमने वर्किंग मान लिया, जो कमाई कर रहे हैं, और एजिंग जो है वो 60 से अबव। अब हम इन तीनों के करेक्टर्स बताते हैं। तो चिल्ड्रन तो जैसे आप हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है एजिंग प्लस चिल्ड्रन। हो सकता है कि एजिंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली, क्योंकि उन्होंने इतना कमा रखा हो, या उनको पास रिटायरमेंट का बेनिफिट हो, या उन्होंने कुछ पैसे जमा कर रखे हो जिसके मारे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो। किसके ऊपर? वर्किंग पॉपुलेशन पे। और जो एजिंग है वो 60 से अबव है। वर्किंग पॉपुलेशन का एक करेक्टर है और है कि वो दे आर बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, एंड क्योंकि वो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 15 टू 59 के बीच में होता है। ठीक है। और जो एजिंग पॉपुलेशन होती है उसको क्या चाहिए होती है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने को, कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है। अब आता है एज सेक्स पिरामिड। ये तो बहुत ही ईजी है समझना। ओहो हो। अब आप देखिए एज सेक्स पिरामिड कितना ईजी है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि एज सेक्स पिरामिड को आप ऐसे देखिए कि यहां पर आप देखिए फीमेल है, यहां पर आप देखिए मेल है, दोनों दिख रहे हैं। कौन सी साइड पे फीमेल है? ऑन द राइट साइड, बिकॉज फीमेल आर ऑलवेज राइट। सो दैट इज वाई ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड द वुमन। तो एज सेक्स पिरामिड बनाना बहुत ही आसान है। राइट साइड पे फीमेल, लेफ्ट साइड पे मेल, डन, है ना। अब क्या होता है कि 3 तरीके के पिरामिड्स बनते हैं, मतलब अभी मैं जनरल उसको समझाऊंगा फिर डिटेल में जाएंगे।
अब ये देखो, ये बिल्कुल पिरामिड की तरह दिख रहा है, ऐसे बड़ा। ये पिरामिड पहले ऐसे था जैसे एक बेल शेप में आता था, ठीक है, बेल शेप पिरामिड कहलाया जाता है ये। और अब ये बेल जैसा इसका शेप रहा नहीं है। अगर इसमें मैं आपको बेल्स दिखाना चाहूँ तो मैं कोशिश कर सकता हूँ बेल्स दिखाने की। तो देखिए, ये एक बेल हो गई, सॉरी, एक बेल ये हो गई। मगर पास का जो इसका पिरामिड हुआ करता तो वो ऐसा होता था, एक ऐसा, यूं और यूं। तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जैसे चर्च बेल हो। मगर अब क्या है कि कुछ कुछ एजेस में माइग्रेशन जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई होगी। तो जब माइग्रेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई होगी तो कई सारे लोग उस जमाने में ऐड हुए होंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये पहला पिरामिड है जो अभी हम देख रहे थे, और आपने अभी नोटिस किया ये वाला आपका पहला पिरामिड है। इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड में नाइजीरिया है। दूसरा इसका करेक्टर है, आप देखिए, बहुत ध्यान से याद करने का तरीका इस बुक में आपको दिया जा रहा है, नोट्स में आपके पास होगा। आप अपनी बुक को मार्क करना चाहते हैं तो यू कैन मार्क इट साइड बाय साइड, एंड यू कैन मार्क इट फ्रॉम द वीडियो ऑल्सो। सबसे पहले कंट्री है नाइजीरिया। फिर है इसका जो शेप है ये एक ट्रायंगल जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रायंगल आपको दिख रहा है। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आजकल हम अंडर डेवलप्ड वर्ड को यूज नहीं करते, बहुत गंदा लगता है अंडर डेवलप्ड। तो हम उसको एक की जगह एक नया वर्ड यूज करते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि हर्टिंग सा हो जाता है अंडर डेवलप्ड यूज करना। तो इसलिए हम यूज करते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें आपका बांग्लादेश है, मैक्सिको है ना, और क्या है? नाइजीरिया। हाँ, नाइजीरिया, वेरी गुड। मगर अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया से ऊपर चला गया। हम्म? अब हम कांस्टेंट को देखना चाहते हैं। कांस्टेंट में हम क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, यहां पर बेल शेप्ड है ये। म- मैंने बताया था पहले ही एक बेल जैसा दिखता था, पुरानी अगर बुक में देखें आप तो उसमें ये बेल शेप था। और अगर एक ये बेल हो गई, एक बेल ये हो गई, तो ये तीसरों बार बेल की तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें पॉपुलेशन, अब एक चीज जो अभी तक हम मिस कर रहे थे वो मैं आपको बताऊं। तो ये जो है ना, पूरा पूरा एज सेक्स पिरामिड जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। आप यहाँ देखो, ये एज ग्रुप्स दिए हुए हैं और यहाँ लिखा परसेंट। मतलब यहाँ पर अगर 12% पॉपुलेशन सबसे छोटे वाले बच्चे हैं, अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में 12% बच्चे हैं, तो मतलब इनके पास यंग बच्चे बहुत हैं, है ना। 15 से नीचे नीचे आप देख लो, फिर यहाँ ऊपर वाले में देखो 10%, 10%। मगर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पर बच्चे इतने पैदा नहीं हो रहे, वो सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड है तो सब ने अपने घरों को प्लान कर लिया, और दो से ज्यादा किसी के पास बच्चे ही नहीं है। तो आप देखिए उनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो ये वाला पिरामिड की रिक्वायरमेंट्स अलग है, क्योंकि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की बेल शेप्ड है, और इसमें आप देखें कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों कांस्टेंट है। तो लोगों को ये डर नहीं होता कि जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ दिनों में मर जाएंगे। तो इसलिए बर्थ कंट्रोल के मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप कर जाती हैं। अगर सोचो, सब कोई सोचें कि हमारे पास दो बच्चे हों, तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की तरफ पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया में भी तो सभी के पास दो बच्चे होते हैं। मगर आप किन को देख रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोगों को देख रहे हैं, अपने लेवल के फैमिलीज को देख रहे हैं जहाँ दो बच्चे हैं। मगर झाड़ू पोछा लगाने वाले गरीब लोग, उनके पास बच्चे तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इंडिया ऐसी जगह नहीं, इंडिया यहीं पर कहीं भी होगा। अब यहां अगर आप देखें जापान में, तो यहां पर
नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया है या जीरो ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों की तो एक बच्चा अगर लोग पहला पैदा करने लगे तो पॉपुलेशन नेगेटिव चल पड़ेगी। और अगर सोचो कुछ लोग दो भी पैदा कर रहे हैं और कुछ एक बच्चे पैदा कर रहे हैं और कुछ बच्चों लोगों की शादियां ही नहीं हो रही हैं, तो अगर कुछ लोगों ने शादियां ही नहीं की तो उनके पास भी बच्चे नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। तो लॉजिकली आप देखो तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का बेस नैरो है और यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ पाई जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है जहां पर ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर आप इसको देखिए, यहाँ देखिए पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ये इसको कंपेयर करिए परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो कम है, यहाँ भी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं जो बुक में नहीं लिखी है, जो फीमेल होती है ना, वो उनकी लॉन्जिविटी होती है, मतलब वो ज्यादा लंबी उम्र हो जीती है एज कंपेयर टू मेल। अब आप इसको कैसे देख सकती हैं, इस पिरामिड को देखिए, ये मेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल पॉपुलेशन है। अब आप देखिए इस साइड फीमेल ज्यादा दिख रही होंगी आपको, है ना, मगर मेल्स जो हैं वो आपको कम दिख रहे होंगे। तो लॉन्जिविटी जो है हर तरफ से देखा जाए तो फीमेल्स की साइड ज्यादा है, इवन ओल्ड एज में भी फीमेल सरवाइव ज्यादा कर पाती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। आप जापान में भी आप ये देख लीजिए, ये प्रूव हो रहा है कि फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आता है एजिंग पॉपुलेशन। Population aging is a process by which the share of older population becomes proportionally larger. This is a new phenomena in the 20th century. तो 20th सेंचुरी में ओल्ड लोग क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि मेडिसिन के होने से वो बढ़ पा रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, population in higher age groups has increased due to increase in life expectancy. With reduction in birth rate, proportion of children in population has declined. तो जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें लॉन्जिविटी क्यों आई है, उसका एक रीजन हो सकता है सैनिटेशन, एक रीजन हो सकता है कंट्रोल ओवर डेथ रेट, एक रीजन हो सकता है बीपी की दवाइयां, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन वी नेवर न्यू दैट देयर आर पीपल सफरिंग फ्रॉम बीपी, so they never used to take any medicine for blood pressure. There was nobody taking medicines for sugar because nobody knew that they have sugar. So medicines have been found and those medicines are giving longevity to the people. And जब longevity बढ़ जाती है तो एक इशू आता है, वो है हॉस्पिटल्स का, कि हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए जो उन लोगों को दी जा सकें। अब हम देखते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। If you see, the topic that we have just now done is rural and urban. वो कहता है कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, जो शहर में रहते हैं वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं। ये बात तो हमें समझ में आई गई है। अब वो कह रहा है कि यूरोप और इंडिया को कंपेयर करो या यूरोपियन कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां मेल आउट नंबर फीमेल इन अर्बन एरियाज। पहली बात यह कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां में बहुत सिक्योरिटी है, पहली बात, मतलब फीमेल बहुत सिक्योर फील करती हैं वहां पर। तो अगर फीमेल सिक्योर हैं तो वो आराम से अर्बन एरियाज में गांव से आ सकती हैं और वहाँ की लैंग्वेज भी उनको सारी समझ में आती है, सेफ्टी भी है, तो वो आराम से शहर में आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल केस इज रिवर्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इंडिया
यहाँ देखो, फीमेल पार्टिसिपेशन इन रूरल एक्टिविटीज फेयरली है। गांवों में औरतों के पास काम बहुत ज्यादा होता है खेतों में। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पावर्टी बहुत है। एक फीमेल जब कहीं शहर में आएगी तो उसको एक घर चाहिए जिसमें वो और उसके बच्चे रहे, है ना। और अकेले नहीं आ सकती वो, कि वो आए और कहीं भी रह ले। और मेल मेंबर्स होते हैं गरीब वाले, वो आते हैं और एक ही कमरे में 5 10 15 लोग रह सकते हैं। बट इफ अ फीमेल कम, शी विल कम विद हर होल फैमिली, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अब एक रिक्शा वाला कमाता ही इतना कम है, तो वो क्या बचाएगा। तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पैक्यूटी ऑफ जॉब्स है, और जॉब्स की कमी है, और लैक ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसलिए फीमेल्स जो है शहरों में कम होती हैं, और गांवों में हम देखते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह सारी मैकेनाइज्ड है, तो सारी की सारी फीमेल्स कहाँ पर रहती हैं, गांवों में कम रहती हैं और शहरों में आ जाती हैं, जो सेफ है उनके लिए। तो एक हम कंट्रास्ट देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में फीमेल्स कहाँ रह रही हैं, शहरों में। और अदर कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फीमेल्स कहाँ रह रही हैं, वो रह रही हैं अपने विलेजेस में, और शहर में नहीं आ पाए। व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी मीन्स अ पर्सन who is above the age of 7 and is able to read, write and do arithmetic with understanding. तो इतना सा अगर हम याद कर लें, लिटरेसी, व्हाट इज लिटरेसी? अ पर्सन, लिटरेसी रेट अगर बढ़ा जाता है तो डोनेट्स परसेंटेज। रेट क्योंकि बढ़ा गया, मगर लिटरेट आता है तो आता है क्या, पर्सन। और अगर लिटरेसी रेट आ जाएगा तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। रेट और परसेंटेज का एक रिलेशन है हर जगह पे, आप नोटिस करिए। Now there are two important things you need to understand. First thing that you need to understand is occupational sector. ऑक्यूपेशनल सेक्टर मतलब 15 से 59 तक के लोग जिनमें एनर्जी है टू डू द वर्क। एंड अब वो जो काम करते हैं वो एग्रीकल्चर हो सकती है। अगर एक आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, या एक आदमी जो है फॉरेस्ट्री कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर एक आदमी ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, मतलब चीज़ों को बना रहा है, तब वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है तो वो टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विसेज हुई। मतलब हमने क्या देखा कि 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में डायरेक्ट रिलेशनशिप विद लैंड होता है। सेकेंडरी में चीज़ें बनाई जाती हैं, प्राइमरी की चीज़ों को लेके मैन्युफैक्चर किया जाता है। और टर्शरी में उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है या कोई सर्विस दी जाती है। और उससे हायर लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जिसमें रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो आपकी क्वार्टनरी एक्टिविटीज होती हैं। Proportion of people working or engaged in these four sectors is a good indicator of economic level development. तो अगर आप देखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर हम देखें, ये 3 बेसिक हो गए, उसके बाद हो गया चौथा क्वार्टनरी। तो इनमें से ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं अगर एक कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है। अंडर डेवलप्ड मतलब लेस डेवलप्ड होती है। मगर अगर लोग सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं और रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, तो वो कौन से लेवल पे आ गए हैं, वो आ गए हैं एक डेवलप्ड कंट्री में। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें हम क्या देते हैं, इफ इकोनॉमी इज स्टिल इन प्रिमिटिव स्टेज देन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर्स वुड बी हायर। तो प्राइमरी सेक्टर्स में लोग ज्यादा होते हैं, मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें लोग कहाँ पर होंगे, वो होंगे टर्शरी सेक्टर में, क्वार्टनरी सेक्टर्स में और सेकेंडरी सेक्टर्स में। वाई? क्योंकि वो डेवलप हो चुके हैं। अब एक चीज जो मिस हो गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो हमको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, वो है ये फिगर। यहाँ पर एक, इस फिगर में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये एक लाइन है 1000 की, ठीक है। ये जो डेटा है जो आपको अभी दिख रहा है,
और ये जो लाइन दिख रही है वो क्या कह रहा है, रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन, फीमेल्स पर 1,000 मेल्स। तो 1,000 वाली लाइन पे मैंने एक लाइन खींच दी कि ये यहां पर 1,000 मेल्स हैं। अगर आप देखते हैं एक साइड रूरल है एक साइड अर्बन है, जो चेस बोर्ड पैटर्न आपको दिख रहा है वो आपका है रूरल, और जो आपकी लाइंड पैटर्न है वो है आपका अर्बन। तो एक हो गया रूरल, एक हो गया अर्बन। समझ में आ गया? अब अर्बन एरिया को देखें जिम्बाब्वे में, तो अर्बन एरिया में फीमेल्स कम है और रूरल एरियाज में फीमेल्स ज्यादा है। जिम्बाब्वे को अगर हम फिर कंपेयर करें नेपाल से, तो वहां पर भी अर्बन एरियाज में फीमेल्स कम है और रूरल एरियाज में फीमेल ज्यादा है। अगर आप जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों को देखें तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अंडर डेवलप्ड वर्ड हम यूज नहीं करते, मतलब लीस्ट कम डेवलप्ड है कंट्रीज औरों से। मगर जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जहां पर फीमेल को रिस्पेक्ट है, या जहां का कल्चर ऐसा है जहां फीमेल को इज्जत ज्यादा दी जाती है, उसका मैं एग्जांपल ब्राजील को दूंगा। जैसे क्योंकि ब्राजील भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है मगर वहां पर भी फीमेल की इज्जत ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि वो रूरल की जगह अर्बन एरिया में चली जाती है और सेफ है। आप कनाडा को देखिए, ब्राजील को देखिए, फिनलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, इन सारी की सारी कंट्रीज के कल्चर को देखिए और इनकी डेवलपमेंट को देखिए। ज़्यादातर फीमेल्स अर्बन एरियाज में आराम से आ पाती हैं। इसका मतलब अगर इंडिया में इतनी फीमेल्स गांव में रह जाती हैं तो इसका मेन मतलब ये भी है कि सेफ्टी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज सिटी इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। यू मस्ट हैव read that line, in Delhi is not safe for the women.